Hello, good morning, student. Student, can you able to hear me? Yes. Okay. Okay, good morning to all of you. Okay, today we'll start with the next heading, that is Hohn's rule. Today we are starting with the next heading that is called as the Hohn's rule. Now, what is the Hohn's rule? See here. I'll first write down the statement. Pairing of electrons in the orbital belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. This is the statement of the Hohn's rule. See, what is statement here? I'll explain first. Pairing of electrons in the orbital. Pairing of electron in the orbital belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. I'll write first one by one. Suppose if I take hydrogen. Now we all know that hydrogen atomic number is 1. Hydrogen atomic number is 1. So atomic number of hydrogen is 1. So electronic configuration is 1s1. You must be knowing the sequence. See, last lecture we have done on sequence. 1s orbital greater than 1s orbital will have next is 2s orbital. Then we have the 2p orbital, 3s orbital, 3p orbital, 4s and so on. But at least first few orbital you should know. कि पहला ऑर्बिटल कौन सा है हमारा 1s. 1s से हायर एनर्जी किसका रहेगा 2s. 2s से हायर एनर्जी किसका रहेगा 2p. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. तो 1s1, तो यहाँ पे s ऑर्बिटल मतलब ओनली वन बॉक्स. S orbital means only one box, and in S orbital, how many electrons are there? Only one. So I'm showing one electron. Okay, so hydrogen atomic number is 1, orbital is 1s1 and 1 electron. Second, helium. Helium atomic number is 2.
helium atomic number is 2, electronic configuration is 1s2. Helium atomic number is 2, electronic configuration is 1s2. So again here we have the 1s orbital. In s orbital 2 electrons are there, so we can say 1 and 2 electrons. 1 and 2 electrons. See here, in s orbital there are 2 electrons. So one has to be with the clockwise spin, other one has to be with the anti-clockwise spin. दोनों का सेम स्पीड, मतलब फॉर एग्जांपल अब ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखते हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ऐसे भी चलेगा, मतलब ये भी चलेगा, ये रिप्रेजेंटेशन भी चलेगा। लेकिन अगर आप कोई बोलेगा कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों का स्पिन सेम चलेगा, नहीं, ये नॉट अलाउड है। दोनों का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, ये अलाउड है क्या, नहीं। तो कंपल्सरी अगर हमारे पास एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो एक रहेगा क्लॉकवाइज, दूसरा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब one will have the upward arrow, other one will have the downward arrow, upward and downward arrow, or downward arrow and upward arrow. Both will not have the same speed, मतलब both will not have the upward arrow और both will not have the downward arrow. ये हमारा हीलियम का है। तो हीलियम आप ऐसे दिखा सकते हो और ऐसे दिखा सकते हो। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, then we'll go for next lithium. Lithium atomic number is 3. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s1, एटॉमिक नंबर 3। हमारे ऑर्बिटल का सीक्वेंस मालूम है, 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, 2s आएगा। तो यहाँ पे 1s के बाद 2s ऑर्बिटल है। एटॉमिक नंबर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन। 1s मतलब 1 ऑर्बिटल, s मतलब एक बॉक्स, s मतलब एक्स बॉक्स, यहाँ पे ध्यान में रखना। s ऑर्बिटल का मतलब हमारे पास एक ही बॉक्स आएगा, s ऑर्बिटल मतलब हमारे पास एक ही बॉक्स आएगा। अभी s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए अपवर्ड स्पिन और दूसरा होना चाहिए डाउनवर्ड स्पिन। और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आप कैसे भी लिख सकते हो, बट विल राइट क्लॉकवाइज। ये हमारा लिथियम। Beryllium atomic number is 4. Beryllium atomic number is 4, so electronic configuration 1s2 2s2. Beryllium atomic number 4, atomic number 4 मतलब देखो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 1s। 1s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे चले जाओगे, 2s। तो यहाँ पे बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4। Beryllium atomic number is 4. Electronic configuration is 1s2 2s2. ओके, तो यहाँ पे 1s एक ही बॉक्स है, यहाँ पे भी s मतलब एक ही ऑर्बिटल है। इन वन ऑर्बिटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होना चाहिए, स्पिन शुड बी अपोजिट। आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो 1s अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, s2 तो यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो 1 विद क्लॉकवाइज एंड 1 विद एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। देखो एटॉमिक नंबर 5 है, 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, 2s के पास। और 2s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाना है, 1s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाओगे, 2s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाओगे, 2p। तो ये हमारा 2p ऑर्बिटल है। हाउ मेनी, एटॉमिक नंबर 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 + 2 4 + 1 5। s ऑर्बिटल मतलब ओनली 1। p ऑर्बिटल, हाउ मेनी p ऑर्बिटल्स आर, 3। कौन कौन से 3 p ऑर्बिटल है, px py pz। तो ये हमारे 3 p ऑर्बिटल्स है, px py pz, 3 p ऑर्बिटल px py pz। अभी देखो s2
2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। S2 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कैसे बनेगा? आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा। स्पिन क्लॉकवाइज भी चलेगा, अब डाउनवर्ड एरो भी चलेगा, मतलब कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन है, आप कैसे भी लिख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन है, आप क्लॉकवाइज कोई भी बॉक्स में लिख सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो कोई भी बॉक्स में लिख सकते हो, फर्स्ट में लिख सकते हो, सेकेंड में लिख सकते हो, थर्ड में लिख सकते हो। स्पिन क्लॉकवाइज लिखना है तो क्लॉकवाइज लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मतलब कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p2। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 मतलब 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 4 + 2 6। S means only one orbital, P means 3 orbital, P means 3 orbital। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? S2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे करना है? पहले हमें क्या लिखना है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। पहले हमें मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकता हूँ, मुझे नेक्स्ट बॉक्स में दूसरा इलेक्ट्रॉन लिखना है। नेक्स्ट मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मतलब ये ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स है बट दोनों को मैं इमीडिएटली एक बॉक्स में नहीं लिख सकता हूँ, ये अलाउड नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाने दो, एक एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाने दो, मतलब एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाने दो। और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आप क्या स्टार्ट कर सकते हो? पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक साथ पहले बॉक्स में नहीं लिख सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर आप क्या स्टार्ट कर सकते हो? पेयर। ओके, तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, तो नाइट्रोजन क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p3। S मतलब 1 ऑर्बिटल, S मतलब 1 ऑर्बिटल, P means how many orbitals are there? 3 orbitals are there. S means only 1 orbital, S means only 1 orbital and P means 3 orbital. Correct? P means 3 orbital. तो यहाँ पे S2 player clockwise anti clockwise, S2 clockwise anti clockwise, और यहाँ पे P3 है, तो 3 मतलब सभी हर एक बॉक्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये क्लॉकवाइज। लेकिन अब एक ध्यान में रखना है, पहला वाला अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए और तीसरा वाला भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। मतलब तुम बोलोगे कि अगर मैंने ऐसा लिखा, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, अलाउड नहीं। हाँ, अगर आप पहला वाला भी एंटी क्लॉकवाइज लिखते हो, दूसरा वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, तो तीसरा वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, ये अलाउड है। मतलब पहले का जो स्पिन रहेगा वैसा ही स्पिन सेकंड वाले का होना चाहिए और वैसा ही स्पिन थर्ड वाले का होना चाहिए। तीनों का स्पिन सेम होना चाहिए। करेक्ट? तीनों का स्पिन सेम होना चाहिए। तो यार एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। तो ये ऐसे आपको ये बोलेगा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे 3 नहीं, ये भी अलाउड नहीं, ये भी अलाउड नहीं। हर एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब जो बॉक्स मतलब ऑर्बिटल, तो सबसे पहले हमें एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता, 2p3 है, 1 2 3, तो ये हमारा नाइट्रोजन हुआ। तो ये अलाउड है, ये अलाउड है। तीनों का स्पिन सेम है, क्लॉकवाइज, या तीनों का स्पिन कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1s2
2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 1s 2s 2p4 s2 s2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेड s2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेड एंड अभी यहाँ पे p4 है p4 मतलब आप बोलोगे यहाँ पे एक, लेकिन अगर पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज और तीसरा भी क्लॉकवाइज, 3 हो गए। फिर अभी चौथा इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे देखना, फिर पेयरिंग स्टार्ट कर सकता। मतलब व्हाट इज द रूल, सब ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाने दो, सारे ऑर्बिटल जब ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तब हमें क्या स्टार्ट करना है, पेयरिंग स्टार्ट करना। ईच ऑर्बिटल शुड कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, each orbital should contain one electron, and once every orbital gets one electron then the pairing can start। तो फिर हम लोग पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, अगर कोई बोलेगा मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि ये राइट है, कोई बोलेगा अगर मैंने पहले का स्पिन अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा तो चलेगा, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज लिखा चलेगा, तीसरे का एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा चलेगा, तो ये आएगा हमारा, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ये अलाउड नहीं। तो बेसिकली क्या करना है, हमें हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखना है, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, पेयरिंग स्टार्ट करना है, पेयरिंग स्टार्ट करना है। जब तक हर एक बॉक्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं जाता तब तक हमारा पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एलिमेंट वी कैन टेक फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, और एक बॉक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बॉक्स में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे आप क्या बोलोगे, अनपेयर्ड, उसे आप बोलोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉक्स में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 मतलब क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p5। एटॉमिक नंबर 9 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो यहाँ पे 1s2 पेयर, 2s2 पेड, 2p5, 2p5 मतलब यहाँ पे कैसे लिखोगे, 1 2 3, all orbitals are occupied, then we can start the pairing with opposite spin 4 and 5। ये हमारा रूल है। व्हाट इज द रूल, हमारा रूल क्या था, देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbital belonging to the same subshell does not occur। मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा जब तक each orbital belonging to that subshell has got one electron। मतलब जब सबसे पहले हमें हर एक शेल में हर एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, हर एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद ही हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये यही हमारा रूल है, पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल will not occur, pairing of the electron in the orbital will not occur unless each orbital got one electron each, unless each orbital got one electron। मतलब हर एक ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक हमारा पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हमारा पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारा कौन सा रूल है, होन्स रूल, होन्स रूल। इसे और भी बोलते हैं होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम
Horn's rules of maximum multiplicity. Horn's rule of maximum multiplicity. करेक्ट. तो अभी ये जो रूल्स मैंने लिखा उसे और एक दूसरे फॉर्म में हम लोग स्टेट करते हैं. और एक स्टेटमेंट है इसका, when several orbitals of equal energy are available, when several orbitals of equal energy are available, then electrons first fill all electron first fill all the orbitals singly before pairing in any of these orbital, any of these ओके मतलब अगर हमारे पास सेवरल ऑर्बिटल रहेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3. तो अगर हमारे पास सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इनका सबका एनर्जी इक्वल है, व्हेन सेवरल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल, तो क्या होगा पहले, देन द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट available, the electron first fill all the orbitals single. सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बिफोर पेयरिंग इन एनी ऑफ द ऑर्बिटल. मतलब पेयरिंग स्टार्ट होने के पहले हर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. और सब जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट कर सकते हो, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं. करेक्ट. when several orbitals of equal energy are available, the electrons first fill all the orbitals singly before pairing in any of these orbitals. करेक्ट. मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लास्ट, मतलब अगर एग्जांपल आपको लेना रहेगा तो आई राइट नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6. So 1s2 electrons are paired, 2s2 electrons are paired and 2p6. 6 मतलब कैसे लिखोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया. अब भी आप स्टार्ट कर सकते हो पेयरिंग 4 5 6. तो यही हमारा रूल था. अगर हमारे पास सेवरल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी अगर अवेलेबल है, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल ऑल द ऑर्बिटल्स सिंगली, बिफोर पेयरिंग इन एनी ऑफ दिस ऑर्बिटल. तो ये हमारा हुआ होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ये हमारा हुआ होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग. Electronic configurations of atoms and its
रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास दो सिंबल है, वन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, one is called as the orbital notation and second one is called as a orbital diagram. One is called as the orbital notation and one is called as the orbital diagram. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें देखता हूँ, हमने क्लियर किया है। देखो अगर हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे, I'll make the column, first column I'll write down the element, second column I will write orbital notation, and here I will write orbital diagram. एलिमेंट, ऑर्बिटल नोटेशंस एंड ऑर्बिटल डायग्राम। अगर मैंने सबसे पहले एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2, इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल नोटेशन। और अगर मैंने बॉक्स ड्रॉ किया और बॉक्स 1s1 बॉक्स में अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम। अगर मैंने हीलियम लिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1s2 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1s2 लिखूंगा और यहाँ पे बॉक्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हमारा ऑर्बिटल डायग्राम। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक है हमारा ऑर्बिटल नोटेशन और दूसरा है हमारा ऑर्बिटल डायग्राम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 रहेगा तो क्या लिखोगे 1s2 2s1, ये रहा हमारा ऑर्बिटल नोटेशन। और यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ करूंगा, दो बॉक्स, s ऑर्बिटल 2 बार है, s2 और यहाँ पे s1। ओके, एक लास्ट एग्जांपल, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, I'll write here as what 1s2 2s2, ये रहा हमारा ऑर्बिटल नोटेशन। s orbital means only one box, s orbital means only one box, s2 electrons are paired, s2 electrons are paired, ये हमारा रहेगा ऑर्बिटल डायग्राम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप दो तरह से लिख सकते हो, एक हमारा है ऑर्बिटल नोटेशन, ये 1s1 1s2 वगैरह, और एक है हमारा ऑर्बिटल डायग्राम। s ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स ड्रॉ करना है, p ऑर्बिटल के लिए 3 बॉक्स ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक, ये हम लोगों ने एक बार किया हुआ है लेकिन मैं थोड़ा रिपीट करूंगा। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस। अभी कंडेंस का मतलब कैसे देखो कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मुझे इसे कंडेंस फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? देखो मुझे इनर्ट गैस मालूम है, इनर्ट गैस हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18। ये तीन इनर्ट गैस एटलीस्ट टाइमिंग के लिए ध्यान में रखो, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। तो अभी देखो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है? 11 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है? नियॉन आ रहा है। तो और नियॉन का 10 है, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में खाली क्या लिखूंगा? नियॉन लिखूंगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो यहाँ तक लिख दिया मैंने और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 3s। ये रहा हमारा कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। कंडेंस मतलब ये रहा हमारा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1
लेकिन इसकी जगह ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके जगह मैंने नियॉन लिखा, इनर्ट गैस, मतलब उसके पहले जो इनर्ट गैस आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैंने लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 13 मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 + 1 13। लेकिन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 13 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, इसका तो 18 है, 13 के पहले कौन आ रहा है नियॉन, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा नियॉन। नियॉन नियॉन मतलब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, यहाँ तक हो गया। फिर इसके आगे जो बचा है, क्या बचा है उसके आगे 3s2 3p1, ये हमारा एल्यूमिनियम का, ये रहा हमारा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन और ये रहा हमारा कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो 19 है, 19 काउंट करो, 2 + 2 4, 4 + 6 10 12 18 एंड +1 19। अभी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 19 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, 19 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 इज कमिंग बिफोर 19। हमें नियरेस्ट देखना है, हमें अब नियॉन भी तो आ रहा है नियॉन, लेकिन नियरेस्ट कौन सा आर्गन है, तो यहाँ पे मुझे लिखूंगा मैं आर्गन। आर्गन मतलब कितना हुआ 18 हुआ, आर्गन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 18 है, तो 18 मतलब 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 + 6 18, तो यहाँ तक हुआ, तो क्या बचेगा फिर हमारा 4s1। ये हमारा कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोटेशियम। मतलब हमारे कॉन्फ़िगरेशन में जो एलिमेंट है उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, नियरेस्ट इनर्ट गैस को अगर ब्रैकेट में लिखते हो, तो हमें क्या मिलेगा कंडेंस, हमें मिलेगा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक लास्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसके लिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर 21 है। एटॉमिक नंबर 21 मतलब 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। ओके, अभी स्कैंडियम 21 है, स्कैंडियम 21 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो हीलियम नियॉन आर्गन, उसके बाद आता है क्रिप्टॉन, लेकिन क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है। हमें नियरेस्ट देखना, नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट लोअर इनर्ट गैस कौन सा है आर्गन है, बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 21, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 21, तो 21 से नियरेस्ट और लोअर कौन आएगा, 21 से लोअर इनर्ट गैस कौन सा आएगा, आर्गन आएगा 18, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में आर्गन। आर्गन मतलब मैंने कहा लिखा 18 लिखा, 18 तक लिख दिया करेक्ट। तो 18 लिखने के बाद यहाँ से 2 4 10 10 12 18 यहाँ तक आ गया, फिर इसे मैं लिखूंगा 4s2 3d1, और यहाँ पे इससे हम लोग बोलते हैं आर्गन, मतलब जो आर्गन तक लिखा इनर्ट गैस है उससे बोलते हैं हम लोग कोर कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कोर कॉन्फ़िगरेशन, और इससे हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे भी पोटेशियम केस में ये हमारा रहेगा, जो इनर्ट गैस लिखा है उसे हम लोग बोलेंगे कोर कॉन्फ़िगरेशन, और इसे हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, मतलब इनर्ट गैस तक लिखोगे उसे बोलना है कोर कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट गैस के बाद में लिखोगे उसे क्या बोलना है हमें, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये हमारा कंडेंस कॉन्फ़िग, तो ये हमारा रहा इन डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा रहेगा कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट। अभी नेक्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग फॉर द लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Isoelectronic species. कौन से? What is the meaning of this? So what is isoelectronic species? Atoms and ions having the same number of electrons are called isoelectronics. Atoms and ions having the same number of electrons are called as isoelectronics. मतलब जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें हमें क्या बोलना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलना है। Okay, the atoms and ions having same number of electron are called as isoelectronic. Now we'll just take one by one example. Potassium atomic number 90. Potassium atomic number 90. क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? ये आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सीक्वेंस क्या आता है हमारा, 1s, 1s के बाद कौन आएगा, 2s 2p, 2s 2p के बाद कौन आएगा, 3s 3p, 3s 3p के बाद कौन आ रहा है, 4s and 3p। ये आपको ध्यान में रखना है। 1s, 1s के बाद आएगा 2s 2p, 2s 2p के बाद कौन आएगा, 3s 3p, 3s 3p के बाद कौन आएगा, 4s, एंड बाद में आएगा 3p। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। पहले काउंट करो, एटॉमिक नंबर 19 है, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 12, 18 एंड 19। तो हमारे पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, K+ लिखना है। K+ का मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन 1 लूज करेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, K+ का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0। देखो काउंट करो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अभी मैं दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो आर्गॉन के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। काउंट करो, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18। तो आर्गॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो K+ के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, आर्गॉन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब K+ and argons are, K+ and argons can be called as what, isoelectronic। और एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ और एक एग्जांपल है, कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। तो कैल्शियम का क्या लिखोगे, 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। पहले काउंट करो, एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? 2 2 6 10 12 18 20। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स। 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कैल्शियम 2+ लिखा, अगर मैंने यहाँ पे कैल्शियम 2+ लिखा, तो कैल्शियम 2+ का मतलब क्या है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। देखो, व्हेन यू राइट K एंड K+, में एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे नहीं। अभी कैल्शियम 2+ का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे 1, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो, 2 + 2 4, 4 + 6 10 12 एंड 6 18। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? K+ के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, आर्गॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और कैल्शियम 2+ के पास भी कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो तीनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो वी कैन से हियर K+ argon, calcium 2+ R, iso electronics. K+ argon, calcium 2+ are isoelectronic because they contain same number of electron, because they contain same number of electron. So K+, argon, calcium 2+ are isoelectronic, and because they are isoelectron, they contain what? Same number of electron. इनके पास same electrons है। K+ के पास भी कितने electrons है? 18। आर्गॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18। एंड कैल्शियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18। तो जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, atoms and ions having the same number of electrons are called isoelectronic. Are called as what? Isoelectronic. We'll take one more example. Identify from the following isoelectronic स्पीसीज। हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफाई करना। तो पहले ए कौन कौन सा दिया हुआ है? नियॉन, O2- and Na+। नियॉन, O2- and Na+ आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब हमें नियॉन दिया हुआ है, ऑक्सीजन 2- दिया हुआ है, और सोडियम प्लस दिया हुआ है। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो पहले देखो, नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 10। एटॉमिक नंबर 10 मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 2 + 2 4 + 6, how many electron? 10 electrons. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, 2 + 2 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। और लेकिन यहाँ पे 2- है,
2 माइनस का मतलब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या अगर ये यहाँ पे 8 है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा O2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6, तो कितना आएगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, 1s2 2s2 2p6, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, sodium atomic number is 11. Sodium atomic number is 11. Atomic number 11 is what? 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन हमें क्या लिखना है यहाँ पे, Na प्लस चाहिए। देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। Na प्लस का मतलब +1 मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखना, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, -2 मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड +1 मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s0। तो how many electrons are there? 10 electrons are there, 10 electrons are there। तो अभी देखो यहाँ पे नियॉन 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन के पास। O2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और Na+ के बाद भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 हाँ O के पास 8 है, लेकिन O2 माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। और Na+ के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। वी कैन से हियर नियॉन oxygen 2 minus and Na+ are isoelectronic because they have same number of electrons. Neon, oxygen, Na+ are isoelectronics because they have same number of electrons, correct? उनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। एक ए एग्जांपल था, विल जस्ट टेक बी एग्जांपल। argon Cl2 minus and K plus। argon 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 + 2 4 4 + 6 10 + 12 18। यहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। Cl2 minus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पहले Cl आएगा। इस Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 10 12 एंड +5 17। तो यहाँ पे हमारे पास
2 plus 2 4 plus 10 12 and 5 17 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा Cl2 माइनस, Cl2 माइनस कितना आएगा 17 एंड -2 मतलब +2 इलेक्ट्रॉन, तो 17 + 2 19 इलेक्ट्रॉन। Cl2 माइनस के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स, तो आर्गॉन के पास 18, Cl2 माइनस के पास 19 और K प्लस लिखेंगे, तो पहले K लिखेंगे, K का एटॉमिक नंबर 19, तो क्या K क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो 2 + 2 4 + 6 10 12 18 19। लेकिन हमें क्या लिखना है यहाँ पे K प्लस लिखना है, K प्लस मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे क्या देखा कि आर्गॉन, यहाँ पे लिखते हैं आर्गॉन, आर्गॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18 इलेक्ट्रॉन। Cl2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 19 इलेक्ट्रॉन्स, और K प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अब ये तीनों है क्या, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ, अगर आर्गॉन और पोटेशियम प्लस बोलोगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिकॉज उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, नहीं। सो दे आर आर्गॉन Cl2 माइनस and K plus are not isoelectronics because they have different argon Cl2 minus and K plus are not isoelectronics because they have different number of electrons, okay, तो उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट हुआ। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उन्हें हमें क्या बोलना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलना है, करेक्ट। तो ये हमारा विद दिस ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद द इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। आपको कुछ डाउट है क्या, पहले डाउट बोलो, डाउट रहेगा कुछ तो बोल दो। कुछ डाउट है आपको तो बोल दो।